Yes. So, Namaskar. Good evening, all. First of all, I thank Sonali. Thank you, everybody from Rotni Club of Ghodbanda Road for consider me capable enough to deliver a session based on investment planning. Uh, let's start with the topic. Before I actually start with a core topic, which is investment, uh, being a certified financial planner, there are five aspects in all based on which we construct a financial plan or we deal with any of our investors. Those five aspects are investment planning, as you all can see, that is the first and important thing, wherein various asset classes are involved. Huge topic was the second is tax planning. Tax planning is when you invest an amount, आपका अर्निंग चालू है, जो भी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, कितने डिडक्शंस है, कहाँ पे आप टैक्स को सेव कर सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग. नेक्स्ट इज रिस्क प्लानिंग. रिस्क प्लानिंग इज नथिंग बट इंश्योरेंस, and we have expertise in insurance already here. So insurance is nothing but we transfer our risk to a company by paying a small amount of premium. Then comes retirement planning, which has to be done when you are young, because jitne young, jitna jaldi start karte ho, you get a tenure, bigger tenure to create a corpus for your retirement. And last is आपने ये सब किया, इन्वेस्टमेंट की, टैक्स सेव किया, अपने असेट्स क्रिएट किए, वेल्थ क्रिएट की, एंड देन टू allow it to reach to a right person, it comes under estate planning. शुरुआत इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से होती है, and it is very important for the reason I'll tell you my experience, a small experience where there is something to learn from. I had a struggle accepting this as a profession because, as you all just heard, I was a guest lecturer in Vadia College, Pune, used to teach Japanese. I used to run my own travel agency and I was very happy there. And by then, our assets under management were increasing. When it crossed 50 CR, that was the time my dad sat with me and he was like, no, you need to consider this and you should, join me. 3 साल तक हमारा झगड़ा चला. आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट क्योंकि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता था. लैक ऑफ नॉलेज वाज माय प्रॉब्लम, बट somehow I decided to move back to Mumbai. I joined him, and last year in October I was invited in Mirzapur as a panelist for uh, the discussion, wherein the moderator asked me, what made you work full fledged with full heart in the profession wherein you don't belong to. My answer was, जब मैंने मेरे पापा को ज्वाइन किया, the business was already almost 16 years 17 years old. तब तक लोग आते थे जिनके पॉलिसी के मैच्योरिटी हो चुकी थी, एक कॉर्पस ऑलरेडी था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, वो ग्रो हो के 10-12 5-7 साल का जो भी कॉर्पस था वो लोग लेकर जाते थे, जिन्होंने घर लिया. आई हैव सीन पीपल सेंडिंग देयर किड्स टू फॉरेन कंट्रीज बाय इन्वेस्टिंग. सो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं क्यों, आई शुड हैव जॉइंड हिम मच मच अर्लियर. ये तो बहुत अच्छा काम है, ये सीखना चाहिए. और मेरा लाइफ खुद का, एज शी स्पोक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, माई लाइफ 7 years back was very different. And as soon as I got a knowledge about it, my own life changed 360 degrees. So I would want every woman to know at least इतना नहीं तो पर्सनल फाइनेंस तो आना ही चाहिए हर एक को. यू वुड नेवर नो कब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस में. सो दैट वाज अबाउट व्हाई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इन आइडियल इन्वेस्टमेंट्स, आज ही ऐसा हुआ कि आई वॉज टॉकिंग टू अनिकेत अलावता. I told him we have organized a session on 6th wherein we'll talk about finance. He was like, no, मला कळत नाही, I'm not coming. So people have that fear की हे खूप डिफिकल्ट असतं, खूप किचकट आहे, जार्गन्स खूप यूज केली जातात, खूप नंबर्स असतात. So all I want to say now is we will try to discuss this topic using daily examples, lighter mode पर, so that एकदम डिफिकल्ट फॉर्म्युला आणि जार्गन्सची काही गरज नसते. ॲलिस इन वंडरलँड वॉज समथिंग
kids, they are very well versed with it. There was an incident, sorry यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं स्टोरी है, 1 मिनट में फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ. Alice, while she was walking in the jungle, she reaches a point wherein there were many roads. वो अलग अलग दिशा में जा रहे थे. She got confused कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, मुझे कहाँ जाना है. She saw a big fat cat there. She asked her कि which way should I take? The cat उसको पूछती है सामने से कि ये जवाब ये आंसर मैं तभी दे पाऊंगी क्वेश्चन का जब आप मुझे बताओगे कि आपको जाना कहाँ है. Where do you want to go? She was like, नहीं मुझे पता नहीं, कहीं तो मैं पहुंच ही जाऊंगी. So the cat says, very important thing, जहां तुम्हें पहुंचना है वहां जाने के लिए शायद बहुत देर लगेगी. So all I want to tell you is, आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत इजी हो गई है. You open your mobile, download an app, see top performing funds, you can easily invest in that. But investment planning is, there is something more to it. First you have clear life financial goals in front of you कि आपको कहाँ कब तक पहुंचना है. It can be a very small goal which has to be accomplished within 2 years. It can be a long duration goal like 15 years, retirement 20-25 years. हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी एसेट क्लास कौन से गोल के लिए अप्रोप्रिएट है. बट दिस स्टोरी व्हाट टेल्स अस अबाउट इज आपको कहाँ पहुंचना है. बिफोर यू इन्वेस्ट यू शुड नो इन योर माइंड कि मेरी अगर 20,000 की 25,000 की SIP चालू है तो उसमें से 5,000 मैंने किसके लिए अलोकेट किए है, 10,000 की मैच्योरिटी कब है और उसके मुझे क्या अचीव करना है. व्हेन यू नो वेयर यू वांट टू रीच, it will be very easy for you and even the one who is planning for you, Fanny. So let's move on to the next one. Acha, so today I'm going to divide the session in 3 parts. 3 देवियों के रूप, हर देवी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, उस हिसाब से हम थोड़ा फाइनेंस सीखने की कोशिश करेंगे. the whole idea is आपको डिफिकल्ट ना लगे या फिर आप रिलेट कर पाओ. ठीक है. We'll start with Durga. Why Durga? As it says, goddess of strength, protection, destruction, wars. सिंपल भाषेत सांगायचं झालं तर अंधकार निर्मूलन. किसी बड़े चीज या किसी डिफिकल्ट चीज को स्टार्ट कर रहे हो, पहले माइंड में क्लियर रखो, पहले फियर को निकालो, तभी आप कुछ ज्ञान हासिल कर पाओगे, तभी आप क्लियर माइंड से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे. थोड़ा नॉलेज की जरूरत है, विल कम ऑन टू दैट. बट बिफोर moving on actually with the deep knowledge and section, first work on 3 things. Everyone should be aware in your family with, I mean clear about these 3 things. मराठी में हम बोलते हैं जमा खर्च कर्ज. जमा, आपको जितना इनकम आता है उसमें से खर्चा कितना हो रहा है, आप सेव कितना कर रहे हो, अगर लोन है कर्ज तो वो कितना है. जमा खर्च कर्ज, ये 3 चीजों पे काम करो, आपके माइंड्स को क्लियर करो, फियर को निकालो एंड फिर ये बेसिक स्टेप है. एक नेक्स्ट स्लाइड एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ. कौन सा शो है? कैन एनीवन टेल मी व्हेन डिड इट स्टार्ट? 96. Okay, any other guess? Yes, sorry. 2000. 3rd July 2000. 2000. Yes, that was our first show. July में. अरे नहीं. So एक जमाना था, हम लोग सब कौन बनेगा करोड़पति वो टाइम पे आकर पूरी फैमिली बैठकर, आज भी लोग देखते हैं पर थोड़ा सा चेंज हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. आजकल ज्यादा इंक्लिनेशन है इसमें. ये चेंज क्या था? People used to believe more in luck. Now they're more towards skills. And if they're moving from a luck towards skills, it is a good sign. कौन बनेगा करोड़पति में कितने लेडीज को करोड़पति बनाया, शायद रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, कम है, मैंने किया सेशन के पहले. बट शार्क टैंक के थ्रू बहुत ज्यादा लोगों ने करोड़पति वो जो ड्रीम था वो अचीव कर पाए. And that is the power of skill.
सो इसलिए दुर्गा, आप स्किल्स डेवलप करने के लिए पहले फियर निकालो, सिर्फ लक पे डिपेंड मत रहो. नेक्स्ट स्लाइड. कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग? पहले तो ये बताओ कि सेम है या अलग है? डिफरेंस है. क्या एक मेजर डिफरेंस है? वैसे तो दो तीन बहुत पॉइंट्स निकल सकते हैं, पर एक मेजर डिफरेंस है. वेरी गुड. यस. You are creating a legacy for yourself. When you are investing, you are creating a legacy. यस, लीगेसी दोनों में मिलती है. इन्वेस्टमेंट में विथ ग्रोथ मिलेगी. करेक्ट. सेविंग हम कभी भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग. ठीक है. There is no risk in savings. There is risk in investment. मे बी लेसर रिस्क इन सेविंग्स. जो रिस्क हैज ए हिस्ट्री. पहले किचन में दादी अपनी कहीं छुपा के रख रही थी पैसा, वो सेव हो रहा था ना, वो इन्वेस्ट नहीं कर रही थी. तो हिस्ट्री सेविंग की बहुत पुरानी है. पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है. अगर आप पैसे को 1 लाख कमाते हो, मान लीजिए, उसमें से अगर 50,000 या फिर 10-12 वॉट एवर अमाउंट, एक्स अमाउंट यू कीप असाइड just without investing, with time, with inflation, this value depreciates. If it is invested with inflation, with time, it can appreciate. Rate of inflation इंडिया में कितना है रफली? 7 के आसपास. एवरेज निकाला तो 6.5 आता है, क्योंकि कभी कभी 5.5 और 7.5 के बीच में 6.5 एक रफली पकड़ते हैं. So actually, see, we are not against any asset class. It is depending upon the background. मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी. So, where was I? So investment में because there is a growth, we can beat. अच्छा, मैं ये बता रही थी कि inflation तो if you are getting 15%, आप ये क्लियर रखो कि पहले 6-7% तो इन्फ्लेशन ही खाएगा, ऊपर का अल्फा है जो हमें मिलता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट. ठीक है. We'll move on. There are many I have seen. मार्केट फॉल हुआ तो क्या होता है, मुझे डर लगता है. एक बार मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसकी वैल्यू बहुत नीचे गई. अपना ईसीजी अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन. मार्केट का ऐसे ही है. इट रिजेंबल्स अ ईसीजी. उसका वो नेचर ही ऐसा है कि वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा. एक आगे एक स्लाइड है इंटरेस्टिंग, जो किस तरह से ऊपर जाता है. द ओनली थिंग इज इट्स फीचर्स इज ये ऊपर नीचे होगा. हम जब असेट क्लासेस के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, आई टेल यू हाउ यू कैन, आई विल नॉट से एलिमिनेट द रिस्क, बट यू कैन रिड्यूस इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. नेक्स्ट, चलिए, we'll move on to the next goddess, which is Saraswati. It resembles, of course, knowledge. पहले फियर्स को निकालो, माइंड को ओपन करो, एक्सेप्ट करने की क्षमता रखो, नई चीजों को सीखने की. देन कम्स गॉडेस सरस्वती. थोड़ा डिटेल में जानते हैं और असेट क्लासेस के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं. आपको लगेगा किंडरगार्टन की स्लाइड गलती से यहाँ डाल दी है. ऐसा नहीं है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. हर एक एनिमल किसी एक असेट क्लास को या उसके फीचर्स को रिजेंबल करता है. विल स्टार्ट विथ लायन. लायन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ही इज अ किंग, ही हैज अ पावर, लॉन्ग टर्म. इट रिजेंबल्स और फिर मैच करता है कहीं ना कहीं इक्विटी से. इक्विटी, व्हेन आई से इक्विटी, अगेन दो पार्ट्स है. आई एम रिफरिंग टू म्यूचुअल फंड इक्विटी, little lesser risky than direct equity, which is shares. We'll come on to that later. So when you are investing in this asset class particularly, keep in mind the horizon has to be more than 6-7 years, and you will enjoy investing in equity. 6-7 years plus. 10-15 साल है, 20 साल है, excellent, but at least more than 6-7 years. Why? बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों को बोलते समय कि नहीं, इक्विटी में पैसा डाला था, 2-3 साल में ऐसा हो गया. आपका फंड कौन सा था, वो कहाँ, कौन से फेज में था, आपने एंट्री कब की, तब मार्केट का कंडीशन क्या था, आपका एज कितना है, किस गोल के लिए इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है.
तो कभी भी मार्केट को ब्लेम करने से अच्छा है जिसमें इन्वेस्ट किया वो असेट क्लास कौन सा था. अगर इक्विटी था, इक्विटी में क्या क्या आता है, वॉट एवर मनी यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, कहाँ जाता है वो पैसा? सेंसेक्स में इन्वेस्ट होता है, शेयर मार्केट में. बट एक फंड में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. द फंड मैनेजर मैनेजेस इट. यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट. फॉर फ्यू इट कुड बी अ बेसिक थिंग फॉर, बट मैं सबके लिए बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए कुछ कुछ लोगों को शायद ये बेसिक लग सकता है. पर अगर इक्विटी है, लार्ज कैप इज ब्लू चिप कंपनीज थोड़े सेफ. मिड में जाओ तो इट इज बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल. मिड कैप, स्मॉल, लिटिल मोर रिस्की, ideal for youngsters. Then there is a flexi cap, flexibility between all three. There is multi cap, again flexibility but with little restrictions, 25% each. There is thematic category which is banking and finance, oil and gas, pharma, digital. ये सब सेक्टर्स है. थीमेटिक फंड में आते हैं, थीम्स है. अभी पावर का एक नया फंड आया, सो इट इज ऑल अबाउट इक्विटी. ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन का गोल है, आपका रिटायरमेंट का गोल है, 15-20 साल है आपके हाथ में, कंफर्टेबली यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी. एलिफेंट, ह्यूज साइज, स्लो मूवमेंट, डेट, इट कैन रिजेंबल टू डेट. डेट में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, 54 EC, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सीपीज, ये सब इसमें आता है. बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूज साइज है, पर रिटर्न्स कम है, स्लो. गारंटेड है पर कम है. तो अगर आपके ऐसे गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल कंटिंजेंसी फंड, जो कोविड जैसे सिचुएशन कभी आती है, 5-6 महीना, अगर 3-4 महीना, 6 महीने तक सैलरी नहीं आ सकती है, फिर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो मेरे एक्सपेंसेस को कवर करने वाला जो फंड होगा, आइडियली वी से 3 months of salary or 6 months of expenses as contingency fund, so that you can invest in this. भले रिटर्न्स कम हो पर लिक्विडिटी उसमें ज्यादा है, जो इक्विटी में थोड़ी कम है. So normally they say 60% debt and 40%. It depends on your age. अगर एज कम है, if somebody is below 40, then you can increase equity portion. उनके हाथ में रिटायरमेंट तक टाइम है, तो they can save little more in equity. अगर एज ज्यादा है तो go for lesser equity and increase debt component. There is one more option, I'm coming on to that, for senior citizens. Rabbit, we are trying to connect it to direct equity which is shares. भागा तो एकदम भागता है, सो गया तो हमें वेट करना पड़ता है कब फिर से पिकअप करेगा. बेच दिया तो कम हो जाए, बेच दिया तो बढ़ता है, सेल किया तो You would never know who will win the race. So इसलिए अच्छा, काजवा, फायरफ्लाई, जो रात में शाइन करता है. So maybe we can resemble it to, it can match to a metal, commodities, silver, gold, ETF, fund of fund, that category. The last one is very interesting, honey bee. आपको पता है इकोसिस्टम को बैलेंस ये लोग करते हैं, मतलब ये लोग नहीं, दिस स्मॉल क्रीचर इज बैलेंसिंग ऑल अ इकोसिस्टम. इस तरह से इन्वेस्टमेंट में एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन है विच इज अ हाइब्रिड फंड. If you're not sure how much equity and how much debt, you can always put a component of around 30% as a hybrid. Hybrid में there is a combination of equity and debt both together. और एक बात, जब मार्केट हाई होगा, इक्विटी में जाओगे या डेट में जाओगे? मार्केट हाई है, अभी भी हाई है, 73, 72, 74. आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, इक्विटी या डेट? इक्विटी. एनी अदर गेस? Market is not to enter into equity right now. Ideal market for debt. जब मार्केट गिरता है, जब लोग डरते हैं, तब एक्चुअली आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी में. जितना इट इज लाइक, अंडरस्टैंड, एक पर्स आपको जो 5,000 की मिल रही थी अभी वो 2,500 में मिल रही है, आप ले लो, मार्केट गिर गया. तब लोग उल्टा करते हैं, लोगों को लगता है ये गिर गया, ये तो बुरा है, इसमें मत जाओ. अगर आपके हाथ में टाइम है, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, remember this rule,
whenever market falls, it is the time to invest into equity. Whenever market is high, आप डेट में पैसा रख के थोड़ा थोड़ा इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हो, मैं उसमें भी आऊंगी. हाइब्रिड में कब एंटर कर सकते हैं? हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द वे, एनी टाइम, ऑल सीजन फंड, एनी टाइम एनीबडी कैन एंटर. क्योंकि मैं अगर फंड मैनेजर हूँ और मैं हाइब्रिड फंड मैनेज करती हूँ, तो मेरा हेडेक है कि मैं बिटवीन डेट एंड इक्विटी कंटिन्यूसली डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन मैनेज करते रहूंगी. वो आप, you can leave it to the fund manager and relax. That kind of beautiful fund it is. Okay, so this was about asset classes. Now you will ask me, मैं किस में कितना % इन्वेस्ट करूं और मेरे लिए क्या अच्छा है. इक्विटी अच्छा है, इक्विटी से डर लगता है, मैं डेट में कितना % रखूं, हाइब्रिड लूं ना लूं. एक सिंपल आंसर है, हम जो काम करते हैं वो बहुत पैरेलल चलता है एज अ डाइटिशियन. जब आप डाइटिशियन के पास जाते हो, अगर मैंने इनको बोला आप राइस नहीं खा सकते, मैं इसको अलाउ करूंगी, कंसिडरिंग हर बॉडी टाइप, हर एज, हर लाइफस्टाइल एंड कंपेयरिंग विद बोथ ऑफ देम, डाइट विल बी डिफरेंट. मुझे उसके लिए बहुत हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, उनको कोई डिसीज है क्या, वो लाइफस्टाइल कैसी है. इसी तरह से व्हेन वी मीट एन इन्वेस्टर, हम लोग बहुत देर तक उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं. आप खुद भी अपना एक प्रोफाइल बनाओ, तब आपके गोल्स को लिखो. लोन चालू है नहीं है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, कोई डिपेंडेंट है नहीं है, या फिर दोनों कमा रहे हैं, सिंगल हैंडेड अर्निंग है, सेविंग्स, बैकअप, इन्वेस्टमेंट है नहीं है. द मेनी एस्पेक्ट्स. सो एक इक्विटी क्लास कितने % में किसको कितना अलॉट करना है, ये आपके टोटल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपके इनकम या प्रोफेशन पे भी ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगा. सो दैट वाज अबाउट एसेट क्लासेस सिलेक्शन. नेक्स्ट, इंडेक्स फंड इज समथिंग, सेंसेक्स को एकदम मिरर करेगा. इंडेक्स फंड इज नॉट एन एक्टिव फंड. इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है. मार्केट जितने % से गिरा, इंडेक्स फंड एग्जैक्ट उतने % से गिरता है. मार्केट जितने % से ऊपर, इसका एडवांटेज ये है, ज्यादा टीम बड़ी नहीं है, ज्यादा टीम बड़ी नहीं है. यस, फंड मैनेजर्स एक्सपेंसिव टीम नहीं लगती, एनालिसिस की टीम कम है, तो एक्सपेंस रेशियो आपको इंडेक्स फंड में, पैसिव फंड में बहुत कम मिलेगा. डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि भले आप 1.10 ज्यादा दो एक्टिव फंड्स में, एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व, आप अल्फा जनरेट कर सकते हो, यू कैन बीट मार्केट. थोड़ा मार्केट से एक्स्ट्रा इक्विटी द एक्टिव फंड्स हमेशा देते हैं. सो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ एक्टिव फंड्स. बट अदरवाइज जिनको डर लगता है मार्केट से, टू बिगिन विथ दे कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ पैसिव फंड. 3S of investments, yes. Yes, lump sum, I'm coming on to that. अगर हमें इन्वेस्ट करना है, good point, this slide refers to that. When you want to invest money, 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं. यंगस्टर्स है, नया जॉब स्टार्ट किया है, कॉर्पस या फिर क्या कहते हैं उससे, बहुत सारे पैसे बैंक में नहीं है, पर मंथली 10-20,000 डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी, 50,000 you can take out. Then they can opt for SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सबको पता है. जैसे आपने बताया लमसम इन्वेस्टमेंट है और मार्केट नीचे है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो इक्विटी में, चलेगा, या फिर हाइब्रिड में जाओ. बट इफ इट इज लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट, अगर मार्केट अभी जैसा थोड़ा हाई चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, विल टेक द होल अमाउंट इन डेट सेक्शन. डेट में तो पार्क करना सेफ होता है. सो आपने 10 लाख लाए, मैंने डेट में पार्क किए, 10 महीने में 1-1 लाख इक्विटी में स्विच कर रही हूँ. सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान. सो लमसम के लिए हम STP यूज करते हैं. वो कितने महीने और कितनी अमाउंट, ये डिपेंड करता है आप कौन से फंड में जा रहे हो, आपके हाथ में कितना टाइम है, किस गोल के लिए वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और कौन से एसेट क्लास में स्विच करना है. बट otherwise STP helps when market is at a high point.
SWP इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ SIP. SIP में आप मंथली पैसा निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो. SWP में आप हर महीना पैसे विड्रॉवल करते हो, एंड दैट विड्रॉवल इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज टैक्स फ्री. एक अच्छा कंसेप्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए है. आप प्रिंसिपल से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये डिविडेंड नहीं है, ये SWP है, इसलिए आपको टैक्सेशन बहुत कम लगता है. बहुत कम सीनियर सिटीजन्स को ये पता है. और आपको लगेगा कि प्रिंसिपल से 10 लाख इन्वेस्ट किए, 6-6 हजार में महीना विड्रॉ कर रही हूँ, 10 साल के बाद तो ऑलमोस्ट 3-4 लाख बचेंगे. तो ऐसा नहीं होता है. वैल्यू डबल्स. क्यों? इन स्पाइट ऑफ यू विड्रॉइंग अ मनी, आपने देखिए फर्स्ट महीने में सिर्फ 6,000 निकाला, 10,000, 9,96,990,000 आर स्टिल इन्वेस्टेड. वो मार्केट के साथ ग्रो होते. अगेन आपने 6,000 निकाले, बची हुई रकम जो इन्वेस्टेड है वो ग्रो होती है. 10 years सिंपल फॉर्मूला, क्लोज टू डबल, एंड देन फिक्स्ड इनकम फॉर 10 years. दिस इज SWP. SWP अगर हमें कभी ऑप्ट करना है तो राइट एसेट क्लास वुड बी हाइब्रिड फंड. वाई? बिकॉज ये 10 साल में मार्केट भले ऊपर या नीचे जाए, फंड मैनेजर बैलेंस कर रहा है, उसमें से विड्रॉवल लिए तो भी प्रिंसिपल अफेक्ट नहीं होती. ठीक है. अगर आपको मुझे माउंटेन क्लाइंब करने बोला गया तो शायद टाइम टेकन बाय ईच ऑफ अस विल बी डिफरेंट, बट द वे विल क्लाइंब अ माउंटेन वुड बी सेम. एक दिशा में हम सीधा माउंटेन को क्लाइंब करेंगे. मार्केट भी माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, बट उसकी चाल, उसका तरीका अलग है. वो इस टाइप का एनिमल है जो 10 कदम आगे जाता है, 4-5 कदम पीछे आएगा, फिर से 5-6 कदम आगे जाएगा, 2-4 कदम पीछे आएगा. जब नीचे आता है डरिएगा नहीं, कंसल्ट योर एडवाइजर. आप थोड़ा सोच समझ के, अगर आपके पास लमसम है, गो इन्वेस्ट. पर जब नीचे गया है मार्केट तब विड्रॉ मत करो. थोड़ा रुकना है, वो टाइम है जब हमें पेशेंस की जरूरत होती है, या फिर थोड़ा टॉपअप करके बैलेंस करो अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि हर एक फॉल के बाद नया हाई आता है. हम लोग, मैं खुद डरती थी बहुत शुरू में. अच्छा, जिस दिन कोरोना आया, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, एक शेयर करना चाह रही हूँ. वी वेर आर असेट्स अंडर मैनेजमेंट वेर 94 CR, और हम लोग प्लान कर रहे थे 100 CR, कुछ सेलिब्रेट करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे. पापा ने तो कभी देखा भी नहीं था कि मैं 1 करोड़ बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट के कॉर्पस को. तो 100 को अप्रोच करे, कोरोना आया. 94 से 2 दिन के अंदर 74 CR. वो इतनी बड़ी फॉल थी, उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया. मेरे लिए एकदम प्रेशर आया कि मैं कौन से बिजनेस में आ गई, मुझे क्यों लाया, मैं बहुत नई थी तब. और 20 CR से पोर्टफोलियो 2 दिन में नीचे जाना. फॉर्चुनेटली टुडे वी आर ऑन 207, बट दैट वाज अ क्रूशियल टाइम. बट हर मार्केट फॉल आपको कुछ सिखाता है. और तब मैंने, मतलब मुझे टाइम नहीं था, फिर मुझे अलाउड भी नहीं था कि मैं खुद डरूं या रोते बैठूं. कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, हमें सबको गाइड करना था, हमें उनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना था. somehow with his guidance, thanks to him, we could do it. And so every time it bounce back. जब बाउंस बैक होता है तो नए 47 से 27 हमें लगा कि बाप रे कहाँ गए, आज हम लोग 74 पर है. आज 70 भी हो गए ना, 70, तो भी लोग आते, ऐश्वर्या क्या लगता है मार्केट गिर गया. आई सेड नो, दिस इज नॉट अ फॉल. ये सिर्फ 2-3 हजार ऊपर नीचे रोज हो रहा है. मार्केट फॉल तब मैं मानूंगी जब 50,000 तक जाएगा. ठीक है. सो वो भी ऊपर जा रहा है, ऊपर गया है, बट विथ दिस फॉर्मेट. ठीक है. ओके. अच्छा, यादेवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता हो गया, विच वॉज दुर्गा. बुद्धि रूपेण संस्थिता वॉज सरस्वती. नाउ लक्ष्मी रूपेण, फाइनली लक्ष्मी. सो ऑफ कोर्स वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून. सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट पैटर्न को फॉलो करो. हर एक असेट क्लास से हमारा एक व्हिडिओ आहे, सोनाली एक नंतर शेअर कर त्यांच्याबरोबर. रंगपंचमीच्या दिवशी आम्ही ब्रॉडकास्ट केला होता. डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट असेट क्लासेस, और लास्ट में मेरा डायलॉग था कि इसी तरीके से आप पोर्टफोलियो को कलरफुल बनाओ, बैलेंस करो हर कलर से, और अपनी वेल्थ क्रिएशन की तरफ
मूव ऑन करो. अभी वेल्थ क्रिएशन के एग्जांपल्स देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में. These are the examples of corpus creation with an SIP of 1500 rupees. इनका एज 25 years है, आपको दिख रहा है स्लाइड. Since he had 35 years to invest, he could start with only 1500 and he could reach a goal of 1 CR. मान के चलिए कि उनका गोल 1 CR का था. जब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो हम गोल पूछते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं. एक एग्जांपल था, वो 25 इयर्स में आया, उसने स्टार्ट किया, अपने फ्रेंड को बोला आप भी स्टार्ट करो, माना नहीं. फिर 10 साल बाद उससे फ्रेंड को भी लगा कि नहीं मुझे भी SIP करनी है, मुझे भी 1 करोड़ बनाने हैं. फिर फ्रेंड केम आफ्टर 10 years. तो फिर हमने उनको पूछा कि आपको अगर सेम कॉर्पस बनाना है तो 1500 से काम नहीं चलेगा. दैट अमाउंट कम्स टू 5500. वाई? सेकेंड पर्सन के रिटायरमेंट के लिए कम टाइम था, ओनली 25 years, 10 years लेसर देन द फर्स्ट वन, पर अमाउंट में ज्यादा फर्क है, 4000 का. और एक फ्रेंड था उनका, नहीं मत कीजिए, who came after 10 more years. कितने से बढ़ेगी उसके लिए SIP अगर सेम कॉर्पस जमाना हो तो? एनी गेस? करेक्ट, बिकॉज कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है. वेरी गुड, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. कंपाउंडिंग का ये एक फॉर्मूला है कि जब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रहे तब तक समझ में नहीं आता. ऑफकोर्स दिखता है क्योंकि अप डाउन चालू होते हैं. रियल पावर इज 32 to 64 and that you can experience only after 7-8 years ideally. of course ये मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, वो फंड पे भी डिपेंड करता है, बट जनरली इक्विटी का पैटर्न ये है. अगर आपको सच में उसका पावर एक्सपीरियंस करना है, रहो उसमें 7-8 साल. सो द लेट यू स्टार्ट, मोर कॉर्पस यू नीड टू पेनिट्रेट इन इन्वेस्टमेंट. आगे बढ़ते हैं. कुछ चीजें जो हम हमारे फर्म में फॉलो करते आए हैं, मैं सीखी हूँ, रोज गाइड करते रहती हूँ. आई थॉट आई वुड शेयर. दिस इज गोइंग टू बी अ 5 minutes more maybe. दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड वेर इन आई वुड लाइक टू गाइड यू कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को किस तरह से गाइड करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट फर्स्ट. आई रिमेम्बर माई फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस, जब मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा था. CFP वगैरह तो मैंने 2-3 साल पहले की बात है. Day 1 माई डैड टॉट मी ओनली वन थिंग. जो भी सामने से पैसा इन्वेस्टर लेकर आ रहा है, अगर तुम उनकी जगह होती, वो पैसा तुम्हारा होता, तुम क्या डिसीजन लेती? वो लो, ना कि कमीशन कितने फंड में कितना मिलता है उसको देखो. अगर तुम ये करोगी तो देर विल बी हार्डली एनी चांसेस दैट यू विल गो रॉन्ग. एंड ट्रस्ट मी, आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दैट. और पापा बोले कि मैं 15-16 साल तक ये सेम चीज को फॉलो करते आया हूँ. इफ यू सडनली कम एंड स्टार्ट समथिंग एल्स, एवरी that balance would be disturbed. So client first was that. I always tell my clients कि हम कपड़े नहीं बेचते. कल जाके कलर ब्लीड हो रहा है, फट गए फर्स्ट वॉश में, दुकानदार विल से दैट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो आपके हार्ड अर्न मनी लेकर बैठे हैं. मार्केट नीचे गया ऊपर गया, आपके घर में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, आपके पैसे हमारे पास है. एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसे मैनेज करना. सो इसलिए ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज में हम, अच्छा एक इंसिडेंस ऐसा भी हुआ है, एक फैमिली है जिनके 25, अभी 35 है, तब 25 CR हमारे पास थे और 1 CR लेकर आए. रिक्वायरमेंट इस तरह से उन्होंने मेरे सामने रखी कि पापा बाजू में थे, मैंने पूछा भी नहीं, डायरेक्टली बोल दिया कि इतने पीरियड के लिए ये फंड में मैं पैसा नहीं ले सकती हूँ, रुकते हैं. वो बोले मैं FD करूँ, तो बोला करो, 3 महीने बाद सोचते. जब वो गए मुझे लगा कि मैंने उनको बोला मी बाबा विचारलं पण नाही तुम्हाला. आई टुक अ डिसीजन एंड सेंट हिम बैक. ही सेड नो यू डिड अ गुड थिंग बिकॉज यू सेव दोस 25 CR, क्योंकि शायद ये गलत होता था तो इससे अच्छा है कि नहीं. सो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, you try to gather all the knowledge regarding that asset class, may it be corporate FD, bank FD or any other instrument, equity, any bond. Have a clarity.
कि उसके रेट्स कितनी बार चेंज होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स आते हैं, कितने उनका एक पीरियड होता है, फ्लेक्सिबल रेट्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, सबका नॉलेज रखो, या फिर किसी एडवाइजर को पूछो कि इसमें डीप कुछ अच्छा, फ्रेंड ने ये फंड लिया तो मुझे वो चाहिए। और मेरे पापा तो एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, दोनों शूज का साइज अलग अलग है, तो उसके फंड्स क्यों लेकर बैठे हो? आपके फंड्स आपके हिसाब से होने चाहिए, आपका पोर्टफोलियो आपके जरूरत के हिसाब से क्रिएट करो। सो वी ट्राई टू ऑलवेज कीप क्लाइंट फर्स्ट। आप भी अपने गोल्स को प्रायोरिटी पे रख के इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सिर्फ, मैं ऐसा नहीं बोल रही आपके फ्रेंड्स गलत है, शायद वो भी सही हो सकते हैं, पर आप सोच समझ के डिसीजन लेना। इट इज अबाउट योर मनी। वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, या फिर हम पूरी टीम 5-6 जन है हमारे साथ स्टाफ, और हम साथ में इस पर बहुत काम इसलिए करते हैं क्योंकि आई हैव सीन चेंजेस इन माय लाइफ। हर एक वुमेन को ये बेसिक नॉलेज, पर्सनल फाइनेंस, आई विल नॉट से कि बड़ा कोर्स जाकर एग्जाम दो, नहीं, पर्सनल नॉलेज होना ही चाहिए। व्हेनेवर वी गो फॉर मीटिंग, हमने एक पैटर्न देखा है इंडियन फैमिलीज के साथ, वो हमें बोलते आप बैठो डिस्कस करो, द लेडी वुड से मैं चाय बना के लाती हूँ, एंड शी गोज। पापा हमेशा बोलते नहीं आप बैठो हमारे साथ, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पैसे के बारे में। सो शी इज नहीं, मेरे हस्बैंड देखते हैं, नहीं मेरे पापा देखते हैं, मुझे तो कुछ समझता नहीं है। वी से नो, यू वुड नेवर नो, एक सिचुएशन लाइफ में ऐसे आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पे आपको खुद संभालना पड़ सकता है। सो छोटी छोटी चीजें हमारे साथ बैठ के जान लो, कौन कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहा है, घर में पॉलिसीज है कहाँ रखे हैं, नॉमिनेशंस किसके हैं, या फिर विल बनाई है या नहीं, उसमें नॉमिनेशन चेक करो, क्योंकि वो सुपरसीड करते हैं विद एवरी अदर नॉमिनेशंस डन इन म्यूचुअल फंड और बैंक। तो ये सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। इवन लेडीज को, दे हैव बीन मैनेजिंग फंड्स, वो सेविंग्स में तो एक्सपर्ट थी, इन्वेस्टमेंट में, और अगर ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ा और अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि वो और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सके। देन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाई वी हैव इंक्लूडेड हियर इज, एक ऐप डाउनलोड करके एक एसआईपी स्टार्ट करने से आप देख सकते हो कि पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पर 10 साल के बाद एक विजन नहीं दिखती कि मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। तो किसी ऐसे ऐप से जुड़ो या फिर ऐसे एडवाइजर से मिलो जो आपको हर एक एसआईपी का, मान लीजिए 50,000 की एसआईपी और मेरे 3 सेक्शन में 3 फंड्स में वो डिवाइडेड है, तो हर एक फंड का असेट क्लास, उसकी मैच्योरिटी, रफली मैच्योरिटी अमाउंट, ये अपने माइंड में क्लियर रखो। हर एक एसआईपी को अपने एक लाइफ गोल के साथ जरूर कनेक्ट करो। इससे 2 चीजें होगी, आप अपने गोल को अचीव करोगे, सेकंड अनवांटेड रिडम्पशंस नहीं करोगे आप। व्हेन यू नो कि नहीं, ये पैसा तो मैंने, मेंटल कैलकुलेशंस, ये पैसा तो मैंने अलग चीज के लिए रखा था, इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है। लास्ट कम्स बिहेवियरल फाइनेंस। I always wanted to go and invest. I always wanted to go and do my graduation and even PhD in psychology. मैं बीकॉम के बाद जाके एमए के लाइन में खड़ी रही थी कि प्लीज साइकोलॉजी, ही सेड नो, बीए करके फिर एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। बट द गुड पॉइंट इज व्हेन आई डिड सीएफपी, एक पूरा पेपर इस पे डिपेंड है, 34 पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। और आप मानोगे नहीं, हम जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मार्केट देती है उसमें से हम इतना ही लेते हैं, बाकी का ऊपर हम छोड़ देते हैं, मिस करते हैं ड्यू टू आवर इमोशंस। किसी ने कुछ बोल दिया, डर लगा, बाहर आए, किसी से कंसल्ट करो जो इसमें जानकारी रखता है, वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेगा और आपको गाइड करेगा कि कब मार्केट से पैसा निकालना है, कब डालना है, कितना एफडी मैच्योरिटी हो रही है तो वो पैसे कहाँ जाने चाहिए। जब मेरे पास कोई आता है इन्वेस्टर, उनको लगता है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, गप्पे मार रही हूँ, स्कैन द पर्सन। ये 34 पैटर्न्स में से इसमें कितने हैं? अगर ये 1 2 3 4 है तो फिर कौन से एसेट क्लासेस में उसको जाना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इस तरह से हम काम करते आए हैं। आपको अगर कोई डाउट्स है, वी आर हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड आई होप मैंने थोड़ा टिपिकल वे में ना लेते हुए अलग तरीके से लिया। आई होप यू आई एम एबल टू कन्वे माय मैसेज टू यू। थैंक यू। I think that was the last time.
Is there anything that you would want me to explain more or want to know from me or from my dad? Sure. Questions that you have to consult. पापा पानी देना सर. तो email कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा. तो अगर 2 questions हम ले सकते हैं. तो ये ज्यादा इन्वेस्ट करना. How did your mom work? How was it? If it was someone approached you, guided the entire process. Age or whatever. दो तरीके अंडरस्टूड. दो तरीके से काम हो सकता है. एक आइडियल वे वुड बी, आप आए हो, आपकी पूरी मैं बैकग्राउंड जान लूँ, ना कि बस 5-10 हज़ार की SIP करके. नहीं, आपकी पूरी बैकग्राउंड जान लूँ और फिर आपको मैं एक प्लान बना के दूँ. वी डोंट चार्ज फॉर दैट एंड देन यू, इट्स अप टू यू हाउ मच एंड वेयर टू पुट. या फिर सेकेंड अप्रोच ये होता है, मेनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स दे स्टिक टू इट. पर मुझे और पापा को लगता है कि शायद हमेशा हर एक कोई आकर सब कुछ शेयर करने के लिए रेडी ना भी हो. 90% ऑफ पीपल आर, बिकॉज रेफरेंस से आते हैं तो शेयर करते हैं. कोई कंफर्टेबल नहीं है तो जो उनकी रिक्वायरमेंट, 1 लाख डालना है, एक SIP करनी है, फाइन. उनको कॉन्फिडेंस आया तो धीरे धीरे ओपन अप होते हैं, फ्रेंड्स को लेकर आते हैं. एवरी मैच्योरिटी होती तो खुद बताते हैं कि 10 लाख की अभी मैं क्या करूँ इसका. सो आइडियल वे हैज टू बी टू नो द क्लाइंट, मेक अ प्लान एंड देन प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. उसमें हम कभी भी सेल्स मार्केटिंग विल नेवर फाइंड मी और माय डैड और एनी ऑफ आवर स्टाफ selling you anything for fulfilling our targets. हम, मुझे लगता है फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए. उसमें टारगेट्स, मैं तो फोन रख देती हूँ कि आपको कमीशन है ना 35 की जगह 45. आई एम लाइक स्टॉप दिस, द पॉलिसी कुड बी वेरी गुड. शायद इनके लिए वो सही नहीं है, मैं नहीं बेचूंगी. क्योंकि पापा के पास 17 साल से ज्यादा लोग हैं, सेकेंड जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए. तो मैं जानकर जितना राइट है उतना सजेस्ट करते हैं, देन द प्रोसेस बिगिंस. अच्छा सॉरी, एक और पॉइंट था. वी मीट देम एवरी 6 मंथली टू रिव्यू, टू नो अपडेट्स फ्रॉम द फैमिली एंड टेक चेंजेस, डू चेंजेस इन द पोर्टफोलियो.